क्योंकि आजकल जो है ना, आजकल का जो फील्ड है ना, आजकल के ज़माने पे क्रिएटिव फील्ड पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। Hello guys, welcome back to my channel you all. Today is Monday, so after a proper reset I have I am fully energetic to start off my week. And basically on Mondays I keep this day for specifically for me, where I consider it as a CEO day. And on this day basically what I do is I schedule all the calls that is I have to take entire week. I have made the to-do list here, I have written all the things I have to say in this video, and that is why I'm looking here. I take up all the team meetings on Monday so that my team knows to what they have to work the entire week, and if there is required of one mid-week meeting that we conduct. But basically Monday को जो है वो हम meeting कर लेते हैं, team meeting, ताकि जो weekly हो पूरा week में पूरा smoothly काम चल जाए. Third is content creation. So I basically focus on creating content on Mondays. इस पे मैं 3 फेज पे इसको डिवाइड कर दी हूँ. तो आज का दिन सारा ब्रेन डंप होता है, जहाँ पे मैं सारा आइडियाज जितने हैं मेरे वो मैं नोशन पे ब्रेन डंप करती हूँ. ट्यूसडे इज द डे जहाँ पे वो आइडियाज को मैं ग्राफिक्स पे कन्वर्ट करती हूँ, जो जिस पे जाके कैनवा पे जाके उसको डिजाइनिंग में कन्वर्ट करना बेसिकली. उसके बाद वेडनेसडे को जो होता है वो कैप्शन राइटिंग और हैशटैग्स के लिए होता है. बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम डूइंग फॉर द नेक्स्ट वीक. इस वीक के लिए नहीं होता है, तो नेक्स्ट वीक का हम लोग पूरा शेड्यूल कर देते हैं. आइदर इफ आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम तो 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स सबका एक ही बार हो जाता है. बट दिस इज द डे वेयर आई बेसिकली कॉन्सेंट्रेट ऑन कंटेंट क्रिएशन. नंबर 4 इज आई शेड्यूल ऑल द इवेंट और कोई भी वर्कशॉप है जो मैं ऑनलाइन ली हूँ, अगर वो कोई है तो उसके लिए मैं सेपरेट सा कोई टाइम स्लॉट दे देती हूँ, ताकि उस पर कोई काम मैं और ना डाल दूँ. और इस जहाँ तक मुझे आप सबको पता है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो उस टाइम को मैं ब्लॉक कर देती हूँ जहाँ पे मेरा कॉलेज होता है, और द रेस्ट ऑफ द टाइम इज फॉर माई वर्क. सो दैट इज इट. एंड अभी मैं बैठ के सारा जितना भी काम है अपने टीम को जो फॉरवर्ड करना है वो करके मैं चालू करूंगी. So let's get started. Yeah. Guys, so I have done finishing on my content calendar for all my pages. Here few are here and few are my Excel sheet. So this part is all done. Also I use Clockify, this website to track my timing. Wait, it's loading. So I use this app to track my timing on what time I'm doing what, so that I don't waste unnecessarily on one specific task. So for content creation it took me around 1 hour 11 minutes to finish the task, and for the rest also I do that. I track my time and see how much time I take to do that specific task. So right now I have a team meeting with one of my team member, and we are working on something really amazing, and that thing I will reveal very soon. But right now let me hop on a Zoom call with her, and let's get started with the call. Because I said ki we are doing a team meeting, so just say hi to my vlog. That's it. 1 second. Let me set my little laptop properly. Hi. Oh, so meet my team member Vibhuti. She is a team member. Basically we sit every Monday, we are planning to sit every Monday and do a team meeting, and we are working on something really amazing. So I wanted to tell you something, that I am a big time junkie. I keep on eating something or the other the entire day. Right now I am eating this packet, and I am sure that this packet will get empty by evening. That I'm that junkie, and I completely eat a lot. Also, I didn't took shower early morning because the entire day becomes so hot, so sweaty, and so
लाइक इतना गर्मी है यहाँ पे कि आई फील सो स्वेटी, सो आई डोंट टेक शावर अर्ली मॉर्निंग, सो आई प्रीफर टेकिंग इट एट आफ्टरनून और इवनिंग टाइमिंग पे, सो दैट द एंटायर नाइट आई बिकम सो कूल, रिलैक्स, बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल, वैसा सीन है। बट राइट नाउ अभी लाइन वाइन नहीं जाता तो उतना गर्मी नहीं लगता दोपहर को, बट जब करंट पावर कट होता है तो एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली। Guys, so it's 5:30 PM right now. I just took shower and I feel so refreshed, क्योंकि जो इस टाइम पे नहाता है ना उसका पूरा दिन भर बैलेंस होके रहता है, क्योंकि ना सुबह में गर्मी ना शाम का गर्मी, एकदम सा न्यूट्रल होके आप रहते हो इस टाइम पे नहाते हो। तो ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मेरा आज CEO डे था, तो मैंने कुछ चीज़ एनालाइज किया जिसके बारे में मुझे आप लोगों से बात करना है। एज आई सेड, मंडे इज़ व्हेन आई क्रिएट कंटेंट। तो जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रही थी बेसिकली, तो मुझे कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि लोग यूजुअली फ्रीलांसिंग या फिर अपने स्किल्स को क्यों नहीं मोनेटाइज करना चाहते, क्योंकि नंबर 1 वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। और जब वो आप रिस्क टेकर नहीं हो ना, तो फिर वो चीज़ आपके अंदर से नहीं आता है, पुश नहीं आता है कि आप उसको करो, एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टॉप। लेकिन मैं बता दूं कि रिस्क हर जगह है, ठीक है। अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ठीक है, 9 to 5 जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको अपने आप को डेली प्रूव करना है अपने ऑफिसर्स के सामने कि आप कैपेबल हो इस पोजीशन में रहने के लिए। तो आपको डेली शो अप करना है, डेली आपको अपने आप को उनके सामने प्रूव करना है। और किसी दिन अगर आप फेल हो जाते हो प्रूव करने के लिए, तो उस दिन आपको वार्निंग आना चालू होता है। अगर आप ये रेगुलरली मतलब वार्निंग आता है आपको, तो आपका रिस्क भी होता है कि जॉब लूज कर सकते हो, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव मार्केट जहाँ पे लोगों को रिप्लेस करना इज़ वेरी इजी। यहाँ पे कोई चीज़ परमानेंट नहीं मिलता, सब टेम्परेरी बेसिस पे रहते हैं, भले ही सैलरी पैकेज बहुत अच्छा हो। And also when I say this, I'm not completely against 9 to 5 typical job, but I'm insisting, क्योंकि ना कल जब मैं मीटअप पे गई थी तो वहाँ लोगों का सवाल था कि सर अगर घर से प्रेशर आता है जॉब करने का और मेरा एक किसी चीज़ पे टैलेंट है, जिस पे पैशन है, जिसको मैं फॉलो करना चाहता हूँ, तो मैं उस मोमेंट पे क्या करूँ। तो मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि उन्होंने जो जवाब दिया, जिनका मीटअप था, बेसिकली रणवीर सर का मीटअप था, यू कैन सी द पिक्चर हियर जो मैं अटैच कर दूँगी। तो जो रणवीर सर का साथ हमारा था, उन्होंने ये हमें रिप्लाई दिया कि अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो और आपको पता है कि आप इस चीज़ पे कुछ कर सकते हो, तो जाओ वैसे जगह जाओ जहाँ पे आपके टैलेंट का महत्व होगा और जहाँ पे आप अपने आप को प्रूव कर पाओगे। अगर आपका स्किल्स कहीं पे आपको मोनेटाइज नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इन अ रॉन्ग प्लेटफॉर्म, या फिर गलत जगह पे हो आप अपना स्किल्स कहीं अच्छी जगह प्रेजेंट करो। क्योंकि आजकल जो है ना, आजकल का जो फील्ड है ना, आजकल के ज़माने पे क्रिएटिव फील्ड पे बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऑल्सो वेन यू आर ट्राइंग टू ट्राई टू बिल्ड समथिंग, लाइक आप अगर कोई स्किल सीख रहे हो या फिर कोई नया चीज़ सीख रहे हो, तो बी पेशेंट, क्योंकि अगर आप कुछ सीख रहे हो तो देर विल बी 100% चांसेस कि आप फेल होगे। दैट डजंट मीन यू विल स्टॉप देयर, बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप यू आर लाइक बिकमिंग अ हिंड्रेंस फॉर योर प्रोग्रेस, या ग्रोथ नहीं हो पाएगा वहाँ पे, राइट। इट्स वेरी नेचुरल। अगर आपको पता है कि आप फेल कर रहे हो, तो दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर यू, एंड दैट इज वाई यू आर फेलिंग। सो फाइंड आउट द डेटा कि आप क्यों फेल कर रहे हो। अगर आप किसी चीज़ के लिए ट्राई किए, नहीं हुआ, तो फाइंड आउट द रीज़न ऑफ वाई ये चीज़ नहीं हो पाया आपसे। इंस्टेड ऑफ फेलिंग और इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि अरे यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, फाइंड आउट द रीज़न कि आपसे क्यों नहीं हो पाया, ठीक है। जब आप रीज़न जानोगे क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उस पर आप ज़्यादा काम करोगे, और जब ज़्यादा काम करोगे तो रिजल्ट कंपाउंड होके आपके पास आएंगे। ऑल्सो डोंट फेल मेंटली बिफोर इवन ट्राइंग। अगर लोग होते हैं कोई लोग कि कुछ वीडियोस देख के या फिर कोई लोगों का बात सुन के वहीं पे ही ब्रेक डाउन होके फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि लुक एट दी रियल डेटा कि आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि यू आर योर सुपर हीरो, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप कैपेबल हो या नहीं हो। कोई अदर पर्सन या थर्ड पर्सन आपको नहीं बता सकता कि आप उस चीज़ के लिए कैपेबल हो या नहीं, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करो।
Also, I coach people, and when I coach people, my first module is all about mindset, because जब कोई स्टार्ट करता है तो उनकी mindset एकदम right place पे होनी चाहिए before even we kick start doing anything. अगर आपको UPSC एग्जाम क्लियर करना, आपका mindset right जगह पे होना चाहिए before you start preparing yourself. आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है तो आपकी माइंडसेट सही जगह पे होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट फ्रीलांसिंग. तो बेसिकली जो फाउंडेशन है, दैट वी कॉल फाउंडेशन, जो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए जो फाउंडेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो जो आप मेहनत माने जो बिल्डिंग खड़े कर रहे हो वो आपका स्ट्रॉन्ग खड़ा रहे. राइट. तो बेसिक से चालू करो, फाउंडेशंस क्लियर रखो, अपना माइंडसेट पे काम करो रेगुलरली. ये चीज़ को अपने दिमाग पे रखो कि आपका माइंडसेट ग्रो होना चाहिए, तभी आप एक चीज़ को अचीव कर पाओगे बेसिकली. और लास्ट आज का मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ रीजंस होंगे गिव अप करने का, लेकिन मैं तो बोलूँगी सिर्फ आप अपने आप से सच बोलो, आप अपने आप से लॉयल रहो, क्योंकि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको बहुत चैलेंजेस आएंगे जहाँ पे आपको फेस करना होगा डिफ़िकल्टीज, जहाँ पे आपको अपने चीज़ों को सैक्रिफाइस करना होगा. डू दैट, क्योंकि अगर आप अपने आप से लॉयल नहीं हो तो फिर आई डोंट थिंक कि आप कोई भी रिलेशनशिप से भी आप एक्सपेक्ट करोगे लॉयलिटी. तो बी लॉयल टू योर सेल्फ. Okay guys, so that was it for today's Monday motivation. I hope you like this mini vlog where I spend my Mondays basically on content creation, team meetings and scheduling calls with my students, and like पूरा वीक के लिए मैं प्रिपेयर होती हूँ. बेसिकली संडेज तो होते हैं जहाँ पे मैं रिसेट करती हूँ, मंडे आके मैं अपने आप को बताती हूँ कि इस वीक में आपको ये काम करना है, तो आई गेट रेडी फॉर दैट. ऑल्सो आई एम लाइक पोस्टिंग हियर रेगुलरली, तो प्लीज़ कंसिडर करो सब्सक्राइब करना. बहुत से लोग देख रहे हैं वीडियो बट स्टिल दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शावर सम लव इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. नाउ अभी जो रेस्ट ऑफ द डे है उसमें भी जाके कंटिन्यू करूँगी अपना कॉफ़ी बना के, थोड़ा एक्सरसाइज करके, एंड binge watch some Netflix, and that is it. Bye bye.